Good afternoon, everyone. Good afternoon. Afternoon, Good ma'am. afternoon. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Is this your second class, na? Value education. Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What we discussed in last class? Tell me Ma'am, what we talked. we discussed stress, depression, what is peer group, and peer pressure, right influence, bad influence, that all. Ma'am, we discussed about education, purpose of education, interpersonal skills, professional skills, depression, stress management, family, conversation, etc. Hmm. Also, we discussed importance of correct evaluation of situations. Yes. What is the role of right understanding in our family life? Ma'am, with right understanding, we have good relations with the family and we don't fall in stress, we don't feel alone. Hmm. Explain difference between stress and depression. Roll number 1 to 10. Explain is difference between stress and depression. Symptoms of stress: physical symptoms, mental symptoms, behavioral symptoms, and emotional symptoms. Explain physical symptoms in stress. Ma'am, in depression, we lose hope and there is no way to find out what to do, and for which we take drugs, alcohol, and many other things due to depression, and also some may attempt suicidal.
And in stress Yes. mainly due to workload, and there is many positive points of the stress, like in education due to homeworks. Hmm. We have to do some homework, w- workload in which we have to perfectly in time maintain our homework. That Hmm. some seems positive way Yes. of the stress. Huh. Yes, correct. Effect bad stress, physical symptoms, sleep pattern change. And when we have stress, we don't get proper sleep at nights. We feel exhausted throughout the day, Yes. and Yes. sometimes like headache and all those kind of stuff happen. Yes. Yes, correct. Mental symptoms, bad stress, lack of concentration. And we tend to see the negative aspects of everything. Hmm. We don't try to see the positive aspects, but Hmm. we found out we point everything like in a Hmm. way that they're not going to do anything well for me. Hmm. Yes, correct. Confusion, lack of concentration, difficulty in making decision. Okay. Behavioral symptoms. When people seems to be confused. Yes. Yes. Increasing smoking, drinking, alcohol, drugs also. Eating disorder, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, अगर बहुत ज्यादा डार्क चॉकलेट खाना या And ईटिंग caffeine. डिसऑर्डर, हाँ हाँ, है ना, ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत लोग कैडबरी डार्क चॉकलेट खाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने पर, और या फिर बहुत मार्केटिंग करेंगे, मनमानी करना, स्ट्रेस, बिहेवियरल चेंजेस, सिम्टम्स, है ना, नेल बिटिंग, है ना, इमोशनल इम्पेशेंस, boost up depression, emotional symptoms. Physical problem, asthma, diabetes, cardiologist disease, immune system disease, poor health, bad stress symptom. How to overcome this bad stress? By doing meditations, indulging in physical activities. Hmm. Hmm. Yes. When by changing our environment, going to the park or walking. Yes. By indulging Then in by our right hobbies. understanding and right Hmm. evaluation. Hmm. Talking with Yes. close friends and family. Yes. Correct. Keep patience. Understand yourself, understand others, reform your thought, right evaluation, right understanding, change your thinking pattern, change your behavior, change your lifestyle, reforming, लेट गो करने का भी नेचर होना चाहिए,
good time management. Make a list what must be done, what should be done, what would you like to do. Cut off time wasting. पहचाने कि मैं टाइम वेस्ट कहाँ पर कर रहा हूँ ज्यादा, उसको ठीक करें, है ना. लर्न टू ड्रॉप अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज. One question: when we make mistake, then we learn. It depends upon you in what way you have learned. क्या ऐसा जरूरी है कि जब हम गलती करते हैं तभी हम कुछ सीखेंगे, कि बिना गलती किए भी हम सीख सकते हैं? When we make mistake, then we learn. It's correct or not? बिना गलती के भी सीख सकते हैं, दूसरे की गलती से सीख सकते हैं. करेक्ट, करेक्ट. वो ज्यादा अच्छा है दूसरों की गलती से सीखना. यस मैम, चाणक्य नीति. लाइफ इज ए स्ट्रगल. लाइफ इज ए स्ट्रगल. जीवन एक संघर्ष है. करेक्ट या? लाइफ इज अ जर्नी. हाँ. जर्नी में तो सब आते रहता है, स्ट्रगल वगैरह. हाँ. स्ट्रगल मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यू मिसअंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मीन्स तभी लगता है हमको कि जीवन एक संघर्ष है, और जीवन एक उत्सव है. जीवन लाइफ इज ए हैप्पीनेस हमको तभी लगेगा जब कंटिन्यू राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इवैल्यूएशन, है ना. तब लाइफ इज ए हैप्पीनेस. जीवन एक खुशहाली है. मनी कैन मेक एवरीथिंग. नो मैम. यस, करेक्ट. एक अजम्पशन है, मान्यताएं हैं. इफ वी बिकम सेटिस्फाइड देन वी कांट ग्रो. ट्रू या फॉल्स? इफ वी बिकम सेटिस्फाइड देन वी कांट ग्रो. अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. इफ वी सेटिस्फाइड. True. एक्सप्लेन. जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है कि एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increases. यस, Increase. इंक्रीजेस, है ना. इंक्रीजेस, है ना. इफ वी अनहैप्पी, अगर मैं दुखी हूँ, एनर्जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? Decreases. है ना. Decreases. अगर मैं दुखी हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल डाउन होती है, डिक्रीजेस होती है. ठीक. तो इफ वी बिकम सेटिस्फाइड देन वी कांट ग्रो. अब आंसर दो. इफ वी बिकम सेटिस्फाइड देन वी कांट ग्रो. Ma'am, the answer is subjective. अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड, है ना. अगर हम हैप्पी होते हैं, हैप्पीनेस मीन्स एक प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, है ना. अगर हम खुश होते हैं मीन्स कहीं ना कहीं हम सेटिस्फैक्शन की ओर जा रहे हैं. तो अगर हम हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बैलेंस रहेगा. फिजिकल मेंटल बैलेंस की हम जो बात कर रहे थे ना, वो यही है. सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, फिजिकली मेंटली बैलेंस, हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, ये सब इंक्रीज होगा हमारे अंदर में.
तो इससे क्या होगा कि हम खुश रहेंगे, तो खुश होकर हम ज्यादा काम करते हैं या दुखी होकर ज्यादा काम करते हैं? When we are happy. है ना, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश रहते हैं तब हम ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम फैमिली लेवल पर तो हम हैप्पी हैं ही, लेकिन हम सोशल लेवल पर भी हम लोगों की हेल्प करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, हम दूसरों की भलाई के लिए, कुछ सोशल ग्रोथ के लिए भी हम कुछ अच्छा करेंगे। तो सैटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस अगर हमारे लाइफ में आ जाता है तो हम ग्रो करेंगे और दूसरों को भी ग्रो करेंगे। दूसरों को आगे बढ़ने में हम हेल्प करेंगे, उनके प्रोग्रेस में हम हेल्प करेंगे, उनके ग्रो में हम हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम संतुष्ट हो जाएँगे या हम सुखी हो जाएँगे तो लाइफ रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हम ज़्यादा अच्छे से, खुशी से हम काम करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये भी एक अजम्पशन, एक मान्यताएँ हैं, एक कहना चाहिए कि हम लोगों ने मान लिया है। जैसे जीवन एक संघर्ष है, हमने मान लिया है, कंटिन्यू अनहैप्पीनेस, रिजल्ट लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। लेकिन कंटिन्यू हैप्पीनेस, तब लाइफ इज ए हैप्पीनेस, है ना। जीवन एक खुशहाली है, उत्सव है, हार्मोनियस लाइफ इज ए हार्मोनियस उत्सव है ना। तो ये सब हमने अनहैप्पीनेस के कारण ये सारे कोटेशन बने हैं जो पॉपुलर है काफी, है ना। जैसे हम गलती करते हैं तब हम सीखते हैं, तो when we make mistake then we learn। उसी तरह से ये भी एक अजम्पशन, एक मान्यताएं हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते या रुक जाएंगे वहीं पर, है ना। तो बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। ऑल ह्यूमन बींग्स मीन ऑल वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स, है ना। रैशनल, नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीफ, तर्क संगत है, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, रैशनल है, नेचुरल एंड वेरीफाइबल है, और ये इट कवर ऑल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग, थॉट लेवल, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, और लीडिंग टू हार्मनी। तो बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन। So the subject which enable us to understand what is valuable for human happiness is called value education. Thus, value education enable us to understand our needs and visualize our goal correctly and also indicate the direction of their fulfillment. एक right way, right direction की ओर हमको ले जाता है, हमको उसके बारे में बताता है। तो the process of value education, the process of value education has to be that of all exploration and not of giving sermon and telling do's and don't. You know, what is over found is truth. Our reality may be start as proposal and has to be verified in the own right. इसको करे या नहीं करे नहीं, हम जो रियलिटी जैसी है उस रियलिटी को एज इट इज वैसा ही देख पाना, वो इसमें हम करते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। यह एक प्रोसेस है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और वास्तव में मैं क्या हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। मैं मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग का सेल्फ। It is process of recognizing one's relation with every unit in existence and fulfilling it. Every unit means Brahmand, solar system and earth. Earth means animal order, plant order, material order, human being. तो हमारा जो रिलेशन है वो पूरे ब्रह्मांड से है ना। इसका आंसर ऐसे है, वेयर डू वी लिव? वी लिव in
यूनिवर्स, है ना, वी लिव इन सोलर सिस्टम, वी लिव इन अर्थ, है ना, लास्ट में हमारा घर और हमारा स्टेट है। तो वी लिव इन सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, वी लिव इन सोलर सिस्टम, वी लिव इन अर्थ, है ना। तो इसलिए हमारा रिलेशन पूरे ब्रह्मांड से है, इसलिए सबको समझना हमारी जरूरत है। हमने नहीं समझा सबको, इसका भी हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। क्या रिजल्ट देख रहे हैं? एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर लेवल पर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्योंकि हमने सभी के साथ रिलेशन को नहीं पहचाना। तो पर्सनल इश्यूज, है ना, रीजनिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, ईगो, है ना, स्ट्रेस, एंगर, जेलेसी, दिस इज पर्सनल या इंडिविजुअल प्रॉब्लम। एट द लेवल ऑफ फैमिली, है ना, ब्रेकिंग अप जॉइंट फैमिली, मिसट्रस्ट, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, और क्या क्या है प्रॉब्लम? फैमिली लेवल प्रॉब्लम, lack of understanding, miscommunication, है ना। एंड सोशल लेवल, बताइए सोशल लेवल में क्या प्रॉब्लम है? एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, सोशल इश्यूज, एक्सप्लेन। social issues at the level of society, casteism, terrorism, fear, है ना, corruption. What is corruption? Is due to feeling of deprivation, lack of feeling of prosperity, a lack of a feeling of relationship, है ना। करप्शन का सोर्स ऑफ करप्शन यही है, सोर्स ऑफ करप्शन। करप्शन क्यों करता है इंसान, उसकी थिंकिंग ऐसी क्यों रहती है? क्योंकि उनके अंदर में ग्रीडी नेचर है। तो इज ड्यू टू फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन, लेक ऑफ फीलिंग ए प्रॉस्पेरिटी, ए लेक ऑफ फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, ये सब कारण से उनके अंदर में फियर रहता है काफी जबरदस्त, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो इस कारण से वो ग्रीडी नेचर हो जाता है और वो ऐसी गलती करता है ना। सॉल्यूशन हर किसी का वही एक ही है, right understanding, right evaluation. At the level of nature, global warming, air pollution, water pollution, soil pollution, है ना, noise pollution, है ना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म करना, loss of fertility of soil, है ना, soil pollution, ये सब नेचर लेवल पर प्रॉब्लम है। ये भी ग्लोबल प्रॉब्लम है। क्या लगता है अभी करंट सिनारियो में, करंट समय में अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे बता पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अभी करंट में? बताइए, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? बताइए कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? Ma'am, global warming Due to air pollution. in a recent example we saw in California that the temperature is too much high for in that normally not that high. Yes. So Correct. 34-40 degrees Celsius goes in California in Yes. recent months. Yes. And also, and we see very forest fire happening in about 3 to 4 months earlier in Turkey. We saw a forest, and in the last year we saw in Australia the bushfire last year or last previous year. अंटार्कटिका में भी बहुत बड़े मात्रा में जो है वो बर्फ का टुकड़ा अलग हो गया है टूटकर वहां से।
वो भी पिघल रहा है, और हिमालय पर्वत में भी ग्लेशियर बर्फ पूरे पिघल रहे हैं। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। और अभी बहुत सारे जगह पर ठंड बढ़ गई है ना, -डिग्री चला गया है। अभी पता नहीं, मैं न्यूज में देख रही थी, जापान या पता नहीं कहाँ का था, वहां भी पूरे बर्फ जम गए हैं। Russia, हाँ Russia. हाँ, ma'am. रसिया, तो वहां पूरे बर्फ जम रहे हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाना, एकदम से डाउन हो जाना, इससे ह्यूमन माने इससे लोग मरेंगे। एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग, सबको प्रॉब्लम है इससे। इससे पता नहीं कितने एनिमल मर रहे होंगे, उसको कौन काउंट करेगा। ह्यूमन बीइंग में भी हमने कई न्यूज में हम देखते हैं कि ठंड से ठिठुर कर इतने लोग मर गए। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। तो कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? कि ह्यूमन बीइंग ने इनजस्टिस विथ नेचर, हमने ऐसा वर्क किया है, ऐसा काम किया है जिससे कि नेचर के साथ इनजस्टिस हो। एनिमल, नेचर मीन्स एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एग्जिस्टेंस की देन है, अर्थ की देन है। मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर का डेवलप्ड यूनिट प्लांट ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर से डेवलप्ड यूनिट एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर से डेवलप्ड यूनिट ह्यूमन बॉडी। जड़ बोलते हैं जिसको, जड़ मीन्स मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स का मटेरियल जो केमिकल थिंग्स है उसका सबसे डेवलप्ड यूनिट है ह्यूमन बॉडी। और पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम और गैलेक्सी में जो लाइफ नाम की जो चीज है, जिसको हम लोग सेल्फ बोल रहे हैं, वो उसका सबसे डेवलप्ड यूनिट है सेल्फ, मीन्स आत्मा या मैं, है ना। ये दोनों डेवलप्ड यूनिट नेचर से ही हमको मिला है, यूनिवर्स से ही हमको मिला है, और हम इन्हीं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसी को हम जो है इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके साथ रिलेशन नहीं पहचाना। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, हम किसके बिना नहीं जी सकते? किसके बिना नहीं जी सकते हम लोग? Food, water, है ना, sun. लगभग आंसर यही आता है कि मैं पेरेंट्स के बिना नहीं जी सकता। अभी हमको यही लगता है, रियलिटी यही है। अभी हम जिसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते, पेरेंट्स के बिना नहीं जी सकते। अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो उनका नाम लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी हम किसके बिना नहीं जी पाएंगे। तो हम लोग ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, सॉइल, जो भी, हम इसके बिना नहीं जी सकते। तो प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं है तो हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो हम लोगों ने यही गलती की है कि हमने अपने आप को, अपने परिवार, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखकर, अपने आप को ध्यान में रखकर हमने डेवलपमेंट किया है, हमने नेचर को ध्यान में नहीं रखा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग से मेरी भी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, मेरी बॉडी भी खत्म होगी, ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाएगी, है ना। तो अगर एनिमल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर, इसको डिलीट कर दो, खत्म कर दो, बताइए हम लोग कहाँ पर हैं? एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर को हटा दीजिए। सोच कर बताएं। एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर अगर नहीं है तो हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्डर के जाने से मेरी बॉडी का एग्जिस्टेंस तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल थिंग्स है, तो बॉडी भी मटेरियल थिंग्स है, मटेरियल ऑर्डर है, ये भी फिजिकल चीज है ये बॉडी। तो ये तीनों ऑर्डर भी फिजिकल है, तो बॉडी भी फिजिकल है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए
अर्थ का सेफ रहना हम मेरी जरूरत है। तो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि हम अपने आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी में रखकर हम काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको कितना भी फैसिलिटी मिल जाए हम उससे खुश नहीं हो सकते। तो द हैप्पीनेस आई गेट फ्रॉम फीलिंग इज लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूअस। हम फीलिंग से ही खुश होंगे, अंडरस्टैंडिंग से ही खुश रहेंगे। द हैप्पीनेस आई ड्रा आउट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। वो लंबे समय तक नहीं रहता है। तो इस तरह से हमारी जो नीड है उसमें the need of the body can't be fulfilled by right understanding or the need of the self can't be fulfilled by psychochemical things या physical facility। ये दोनों separately पूरा होगा। both type of needs have to be understood separately, both type of needs have to be fulfilled by separately। ये दोनों separate जो है उनका अलग अलग तरीके से ही ये fulfillment होगा, उससे कम में नहीं। तो हमारे when you don't understand the self you sometime over evaluate या otherwise evaluation। अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो हमसे गलतियां होंगी ही, है ना। तो this over evaluation of the self is ego और under evaluation of the self is depression। तो causes of depression या source of depression जो misunderstanding कह रहे हैं, misunderstanding means over evaluation, under evaluation and otherwise evaluation means misunderstanding। यही डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इसलिए रॉन्ग इवेल्युएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग वही है, दोनों एक ही है ना, नाम अलग अलग है। तो इस तरह से सेल्फ इज कॉन्शियसनेस, इट्स नीड्स आर फीलिंग इन कॉन्शियसनेस लाइक हैप्पीनेस and these needs are fulfilled by activities of consciousness or right understanding या right feeling। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वो अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि मुझे पर्सनल इंटरपर्सनल माने इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी एंड नेचर ये एंड ग्लोबल ऑल माने इन सभी लेवल पर मुझे नॉलेज की जरूरत है, सभी लेवल। इसी को हम राइट अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, है ना। बॉडी इज मटेरियल, इट्स नीड्स आर मटेरियल लाइक फूड एंड दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय मटेरियल या साइकोकेमिकल थिंग्स। तो द नीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस कांट बी फुलफिल्ड बाय मटेरियल, द नीड ऑफ मटेरियल कांट बी फुलफिल्ड बाय कॉन्शियसनेस। दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या गलती की, हमने मान लिया कि फिजिकल नीड और मेंटल नीड दोनों फिजिकल नीड से ही पूरा होगा, इसलिए हमने नेचर अर्थ का शोषण किया हमने। इसी कारण आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। वी कैन सी मेनी प्रॉब्लम्स एट ऑल लेवल्स। हम सब ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया देख रही है, इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम, फैमिली लेवल प्रॉब्लम, सोशल लेवल प्रॉब्लम एंड नेचर अनबैलेंस, है ना। पर्सनल लेवल पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फैमिली लेवल फियर, सोशल लेवल में भी फियर या डिस्ट्रस्ट, है ना, या डिसरेस्पेक्ट, और नेचर लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग। वी आर ट्रबल्ड बाय these problems, we want to get rid of them, efforts to get rid of problems। हम सब परेशान हैं और we are making effort at every level। सरकार भी लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग बहुत स्लो कहना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं चल रहा है, केवल न्यूज हम सुन रहे हैं न्यूज, लेकिन इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग न हो। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक अभी हम लोग कर रहे हैं।
सारे नेता लोग, सारे पॉलिटिशियन लोग लड़ रहे हैं, वो केवल सीट के लिए लड़ रहे हैं, पोजीशन पावर के लिए लड़ाई चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अभी कुछ नहीं चल रहा है। जो भी थोड़ा मोड़ा चल रहा है कहीं पर भी अवेयरनेस या जैसा भी, बहुत माइनर है। तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये धरती कितना साल रहेगी हमको नहीं मालूम। 10 साल रहेगी, 20 साल रहेगी, 50 साल रहेगी, हमको नहीं मालूम। ये ब्लास्ट हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकेंगे तो। पूरी धरती गर्म हो जाएगी, पूरा धरती में पानी का स्तर पूरा बढ़ जाएगा, है ना, सब डूब जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पूरी धरती को अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी मटेरियल ऑर्डर, सेकेंड नंबर प्लांट ऑर्डर, थर्ड नंबर एनिमल ऑर्डर, फोर्थ नंबर ह्यूमन बीइंग। पूरी धरती में सबसे कम ह्यूमन बीइंग है, सबसे कम, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग से ही है। ठीक है ना? तो फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? लेक ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल लेक ऑफ कम्युनिकेशन। lack of communication. है ना, रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन आपस में नहीं समझ पाना एक दूसरे को, इस कारण से भी फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ती है। डाउट करना, शक करना, शंका करना, ये सब फैमिली इश्यूज हैं। और नेचर में सॉल्यूशन लाने के लिए अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ नेचर। हमने नेचर के साइकिल को पूरा ठीक से नहीं समझा है। अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ नेचर, उसको भी समझना जरूरी है। करंट एजुकेशन में लिटरेसी इज इंक्रीजिंग, द फियर ऑफ द इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इंक्रीजिंग। किस नॉलेज बढ़ रहा है? साक्षात्कार बढ़ रही है, लिटरेसी इज इंक्रीजिंग, फियर भी इंक्रीजिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है हमारे अंदर में, इसलिए द फियर ऑफ इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इंक्रीजिंग। न्यूज़पेपर में हम लोग देखते ही रहते हैं कि इतना मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का पूरा न्यूज निगेटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज तो बहुत कम ही आता है, निगेटिव न्यूज ही ज्यादा आता है। डू वी वांट टू बी हैप्पी? आप लोग क्लास में हो कि सो गए हो सब? Yes, ma'am. Hello, we are in a आई एम ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आज सो रहे हो सब। मुझे कल किसी का मैसेज आया था कि मैडम हमारा असाइनमेंट है काफी सारा, तो किसने दे दिया भैया इतना सारा असाइनमेंट आप लोगों को? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? ठीक है सर। हाँ, ईजी मीन्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सर। तो कब करते हो फिर ये होमवर्क? रात है ना आपके पास, सैटरडे है, संडे है, नाइट है। जी मैम। तो उसमें कुछ लास्ट डेट भी दिया है क्या आप लोगों को? हम कल है। पहले मैम। ये असाइनमेंट कितने दिन हो गया दिया था आपको? ज्यादा दिन नहीं है मैम। 1 वीक हो गया? 1 वीक Assignments, ma'am. से गो ना, तो ठीक है ना, 1 वीक, 5 डेज हो गया ना, 4-5 डेज।
बिफोर 4-5 days। तो आप सबने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? No, ma'am. Some parties. Okay. Almost. Still left, ma'am. He left. आपको टाइम तो दिए थे, जो भी है। अब मुझे नहीं मालूम आपका वो होमवर्क कितना हार्ड है, इजी है, वो आपको पता है ना। लेकिन जो भी है, आप इवनिंग है, नाइट टाइम है, काफी टाइम है। आप लोग उस टाइम में डेली अगर उसको टाइम दोगे तो हो जाएगा। हम लोग गलती यही करते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि आप गुड टाइम मैनेजमेंट बनाओ, कि हमको रोज कितना घंटा होमवर्क को टाइम देना है। तो गुड टाइम मैनेजमेंट होने से भी हमारे अंदर में एक स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस भी डेवलप करें आप, जो हमने गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस डिस्कस किया था। तो इंक्रीज योर गुड स्ट्रेस, तो उससे भी एक, आप जो मोबाइल को टाइम देते हो या इधर उधर जो टाइम देते हो, उसमें थोड़ा सा लेस करोगे आप, तो ठीक हो जाएगा। और मेरी जो क्लास है, इसमें भी आप लोगों को मैंने बताया था क्या पिछली बार? मेरी जो क्लास है, इसमें आप लोगों का ये थ्योरी क्लास है, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल क्लास होगा। प्रैक्टिकल क्लास जब सबकी होगी तब मेरा भी होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा तो मेरा भी होता है। तो आपका एम सेम, मिड सेम और टीए ऐसा रहता है इसमें। तो आपके जो मार्क्स हैं वो हम आपके जो असाइनमेंट सबमिशन और वाइवा जो है उससे हम बनाते हैं। आप लोगों को हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, और जो भी हमने आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में जो भेजा था, है ना, या हमने जो भी बुक सजेशन किया होगा आपको, उसी का ही हमने पीडीएफ भेजा था आपको, कुछ यूनिट्स निकाल के। आपको पीपीटी बनाना है, इंडिविजुअल पीपीटी। इंडिविजुअल पीपीटी में आप लोगों को कोई भी एक टॉपिक पर 5 से 10 स्लाइड या प्लस माइनस जो भी हो सकता है, उसको एक्सप्लेन करना है 3 to 5 मिनट, 6 मिनट के अंदर में आपको समझाना है कि आपने पीपीटी में क्या बनाया है। वो एक असाइनमेंट है। दूसरा, आप लोगों को ग्रुप टास्क दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना पूरे 86 स्टूडेंट्स शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 है। 90, है ना। तो आप लोग अपना ग्रुप बना लेंगे, 10-11 ग्रुप बना लेंगे। आप एक ग्रुप में 7-8 लोग ग्रुप बना लेना, रोल नंबर वाइज। और फिर ग्रुप में आप लोग कोई एक टॉपिक डिस्कस करके आपको एक वीडियो सबमिट करना है। तो वो वीडियो शॉर्ट फिल्म भी हो सकता है, वो वीडियो एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। तो आप लोग उसको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसा छोटा सा आप बनाएंगे, डिस्कशन मोड में या जैसा भी मोड है, शॉर्ट फिल्म जैसा। और उसमें कोई भी एक एक्सपर्ट होगा, जो आप यूट्यूब से सीख लेना कि एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग कंपाइल कैसे करते हैं वीडियो को, वो देख लेना। इजी रहता है, हार्ड नहीं रहता उतना। मोबाइल में भी उसका ऐप मिलता है शायद, और इसमें भी रहता है, सिस्टम में भी, आप कंप्यूटर में भी बैठ के भी कर सकते हो। तो आपको वीडियो जो है, चाहे तो आप ऐसे गूगल मीट में आप आ गए और आप लोग आपस में कोई एक टॉपिक के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे डिस्कस किया, तो वो 5 से 10 मिनट का एक छोटा आपको वीडियो बनाना होगा और पीपीटी बनाना होगा, ये सबमिट करना होगा। अभी आप लोग जनवरी तक में आपका पीपीटी का काम हम करवा देंगे पूरे जनवरी, एंड ऑफ जनवरी तक। और अगर जब समय मिले आप लोग अपना एक पीपीटी बना करके रख लें सेपरेट। और वीडियो ग्रुप टास्क है, वो आप फरवरी तक भी कंप्लीट कर ले, तो 2 महीना उनके लिए हम अभी से बता रहे हैं आपको, कि अभी आपका जो पूरा जनवरी फरवरी है, उसमें आप मिलकर कोई भी एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर रख ले और पीपीटी बनाकर रख ले, या जब समय मिले। आपके अदर सब्जेक्ट के भी आपको होमवर्क तो मिलेंगे ही। तो ये सब आपको सबमिट करना है ना। हम आपको ईमेल आईडी देंगे, उसमें आप लोग भेजेंगे, और क्लास में आप लोग पीपीटी प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आज मेरी क्लास है, वैसे मेरी जैसे आगे जो भी क्लास आएगी, उसमें हम कहेंगे कि किसने अपना पीपीटी बना लिया है। पीपीटी इंडिविजुअल है, वीडियो ग्रुप है, ग्रुप टास्क है।
तो वो आप क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे 2 से 5 मिनट, 7 मिनट जो भी आपका टाइम रहेगा, और वो आपका ऐसे हम सबमिट लेते जाएंगे। और जब फाइनल आपका एंड सेमेस्टर में जब आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तब हम वाइवा लेंगे आप लोगों का। ये सब मिलाकर आपके मार्क्स बनेंगे, और प्लस अटेंडेंस को भी हम ध्यान देते हैं कि किसका पुअर अटेंडेंस है, किसका 0 अटेंडेंस है, वो भी आपके मार्क्स पर इफेक्ट करेगा, है ना। ये इस क्लास से आपका इवैल्यूएशन पैटर्न यही रहेगा, उसको आप ध्यान देंगे। ओके Ma'am, what is the topic of PPT? पीपीटी टॉपिक एक तो मैं जो क्लास में पढ़ा रही हूँ अभी वो सब है, जैसे explain difference between temporary happiness, continued happiness, source of happiness, misunderstanding, lack of understanding, है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे पर्सनल इश्यूज टॉपिक, पर्सनल इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इंटरपर्सनल इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सोशल इश्यूज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ग्लोबल मीन्स नेचर, ग्लोबल वार्मिंग या नेचर रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ऐसे आपको टॉपिक बनाना है। तो उसमें आप जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्लस हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स भेजा है, और कुछ हम पॉइंट्स बना रहे हैं, कुछ बना हुआ है, हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उससे आप लोग अपना एक टॉपिक ले लेंगे। तो जो ग्रुप टास्क रहेगा उसमें आपस में डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस तो नहीं, ग्रुप में आप लोग जैसे आपका मान लीजिए 10 ग्रुप बनता है या 11 ग्रुप बनता है, तो वो डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। और पीपीटी जो है वो शायद क्लैश हो सकता है, कुछ का टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन पैटर्न लगभग सबका अलग अलग रहता है, तो नो इशू, है ना। और आपके दिमाग में और कोई टॉपिक आता है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप या फोन से आप मुझे पूछ लेंगे कि मैं ये टॉपिक चूज कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो आप भी अपनी तरफ से टॉपिक बना सकते हो। ओके, तो check within yourself the unhappiness in your family या our family more due to lack of physical facility या relationship। तो हम लगभग देखते हैं कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है more due to lack of fulfillment in relationship या lack of understanding, है ना। तो अगर हम कभी न्यूज में सुनते हैं कि किसी का मर्डर हो गया या उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो लगभग उसका रीजन 101% मोर ड्यू टू लेक ऑफ इन रिलेशनशिप या लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही उसका रिजल्ट रहता है, रीजन रहता है। इसी तरह से अगर हम अपने डे टू डे लाइफ को देखें कि हम लोग हाउ मच टाइम इन एफर्ट आर यू इन्वेस्टिंग, हम सबसे ज्यादा टाइम फॉर फिजिकल फैसिलिटी को देते हैं, न कि रिलेशनशिप को, है ना। इस कारण से भी प्रॉब्लम है। तो द अनहैप्पीनेस is more due to lack of fulfillment in relationship, है ना। पूरी दुनिया में यही एक प्रॉब्लम है ना। और हम लोग मोस्ट ऑफ हमारा जो टाइम है स्पेंड करते हैं फॉर फिजिकल फैसिलिटी के लिए। तो फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी। हमको दोनों चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, फिजिकल फैसिलिटी प्लस रिलेशनशिप, है ना, प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। लेकिन फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। यहाँ हम लोग सेम है, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग। फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर एनिमल एंड नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। हम दोनों का सेम है, हमको भी फूड चाहिए, उनको भी फूड चाहिए, हमको भी हाउस चाहिए रहने के लिए, उनको भी चाहिए। वो भले पेड़ के नीचे रहें, है ना, या जंगल में रहें, कहीं भी रहें, तो हम लोग उस मामले में सेम है। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी रहने के लिए घर चाहिए, हमको भी रहने के लिए जगह, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, हमको भी रहने के लिए घर चाहिए। ऐसा हम लोग फिजिकल फैसिलिटी लेवल पर हम दोनों सेम है ना। लेकिन फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, पर्याप्त है उनके लिए, सफिशिएंट है, कंप्लीट है।
For human being, physical facility is necessary, but not sufficient, not complete. हम पूरे नहीं पड़ते हैं उससे, हमको कुछ अधूरापन सा लगता है। हमको क्या चाहिए? हमको सेटिस्फैक्शन चाहिए, या हम कहें हैप्पीनेस कहें, या हमको रिलेशनशिप चाहिए, है ना। एनिमल ऑर्डर को अगर खाना भरपेट मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को भरपेट खाना मिल जाए तो वो खुश नहीं होता है, क्योंकि अगर वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है तो वो खुश नहीं हो पाता है ना। तो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग हैज लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ही बिकम अनकंफर्टेबल एंड अनहैप्पी, बट वंस ही गेट द फिजिकल फैसिलिटी, ही फॉरगेट अबाउट इट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 100 अदर थिंग्स। जो चाह रहा है, जो सपना देख रहा है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बन गया है, 1 लाख पैकेज पर मंथ, 1 लाख सैलरी हो, मिल गया तो भी वो सेटिस्फाइड हो गया, ऐसा नहीं है। मोर मनी, मोर फैसिलिटी, मोर सेटिस्फेक्शन नहीं, है ना। तो भी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 100 एंड अदर्स। दुनिया भर का निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर में मूवमेंट करते रहता है। कहीं ना कहीं हम केवल फिजिकल फैसिलिटी से हैप्पी नहीं होने वाले, है ना। तो हमको अगर भरपेट रोज भोजन मिल रहा है तो भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि फिजिकल और सेल्फ और बॉडी, हम दो रियलिटी से हम लोग बनने हैं। तो फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी, बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी। हमको दोनों चाहिए, लेकिन फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। इस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखने जाएं तो हम अभी करंट सिनारियो में हम ह्यूमन बीइंग दो पार्ट में है अभी। एनिमल कॉन्शियसनेस या एनिमल माने कहना चाहिए कि जानवर जैसे जिंदगी जी रहे हैं या इंसान की तरह जी रहे हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस पशु मानव, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस मीन्स मानव, मीन्स ह्यूमन बीइंग। हम लोग कहते हैं ना इंसानियत खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटीज खत्म हो गई है, इसका मतलब एनिमल कॉन्शियसनेस। In our living is only for physical facility, then we are living with animal consciousness, because animal live only for physical facility, है ना, are fulfilled by that, not human being। हम लोग एनिमल कॉन्शियसनेस में हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है, वो हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा बिहेवियर है, वो बहुत निगेटिव है ना। हमारे अंदर का जो नेचर है वो काफी द फीलिंग दैट आई कांट फुलफिल माय नीड्स, सो आई गो फॉर चीटिंग एंड मैनिपुलेशन, है ना। ट्राइंग टू फुलफिल माय नीड बाय चीटिंग या मैनिपुलेशन। हम धोखा, जिसको हम लोग करप्शन कह रहे हैं, है ना। द फीलिंग दैट आई कांट फुलफिल माय नीड, सो आई गो फॉर करप्शन या चीटिंग या मैनिपुलेशन। तो ये दिस इज एनिमल कॉन्शियसनेस, ये एनिमल नेचर है। क्योंकि एनिमल ऑर्डर में आप देखोगे ना, तो वो लोग जो हैं एनिमल को, मांसाहार एनिमल को देखना, वो लोग लड़ाई झगड़ा करके खाना छीन लेते हैं। अगर आपने एक डॉगी को खाना दिया तो दूसरा डॉगी खा रहा है तो वो उसको मार के भगाएगा और खुद खा जाएगा। तो छीना झपटी वाला जो नेचर है वो एनिमल नेचर है। ह्यूमन बीइंग में मिल बांट के खाने का नेचर है। तो करप्शन कहें या चीटिंग एंड मैनिपुलेशन कहें, ये अगर हम कर रहे हैं मींस एनिमल कॉन्शियसनेस, जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। या हम लोग और भी करते, वायलेंस है ना। हम तंग करना दूसरों को, जबरदस्ती बलपूर्वक दूसरों की चीजों को अपने ऊपर पाने की कोशिश करना, है ना। तो हम लोग वायलेंस एंड फोर्सफुलनेस, ट्राइंग टू फुलफिल माय नीड बाय फोर्स एंड वायलेंस, है ना। हम जबरदस्ती हिंसा करके हम दूसरों की चीजें छीन लेते हैं। दिस इज एनिमल कॉन्शियसनेस। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब पेशेंस है वहां पर,
मिल बांट कर खाने का नेचर है. इफ वी आर लिविंग फॉर ऑल थ्री, right understanding number 1, 3 means right understanding, number 2 relationship, good relationship, third physical facility. अगर ये तीनों हमारे पास है, if we are living for all three, then we are living with human consciousness. हमारे अंदर में ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, सेटिस्फैक्शन है, केयर है, जस्टिस विथ ह्यूमन बीइंग, जस्टिस विथ नेचर, जस्टिस करने का नेचर है, हमारा स्वभाव है तो भी. तो दिस इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस. तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमारा जो नेचर है वो काफी जस्टिस वाला नेचर हमारा रहता है. उसको हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना. इवन आफ्टर गेटिंग मोर मनी एंड मोर फैसिलिटीज देन नेसेसरी, a human being, a person is not happy at the thought level. लेकिन हम विचार स्तर पर दुखी रहते हैं. हम जो चाहते हैं उतना पैसा मिल जाने के बाद भी, क्योंकि because the person earn money in his life but did nothing to increase the right understanding. हमने right understanding increase नहीं किया है, अपने अंदर में right understanding को हमने develop नहीं किया है. राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइट इवैल्यूएशन, है ना. राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स नो अबाउट योर सेल्फ, अदर सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर. हमको सबको जानना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है. तो व्हाट टू अंडरस्टैंड, हमें क्या समझना होगा. टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर्स, अदर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड ऑल फैमिली मेंबर्स. हम जिनके साथ रोज रहते हैं, जीते हैं, उनको समझना पड़ेगा. अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू, उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ भी मेरा जीना रहना होता है. मैं जॉब कर रहा हूँ वहां, मैं स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ता हूँ वहां, या मैं हॉस्टल में हूँ तो वहां. तो अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू, लर्न टू करेक्ट योर ओन निगेटिव थॉट्स, है ना. मेरे अंदर में जो निगेटिव थॉट्स हैं उनको कैसे मैं ठीक करूं, वैसा मुझे अगर कहीं नॉलेज मिल रहा है तो ही मुझे उस पर काम करना है. तो हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी एंड नेचर, ये सभी लेवल पर हार्मोनियस को फुलफिल करना, ये मेरे लाइफ का गोल है, ये मेरे लाइफ का पर्पस है ना. तो एग्जिस्टेंस इज हैप्पीनेस, अस्तित्व में खुशहाली है. एग्जिस्टेंस इज हैप्पीनेस. लेकिन हमने क्या मान रखा है, एग्जिस्टेंस इज अनहैप्पीनेस. हमने सुख दुख साथ साथ है मान लिया है. एग्जिस्टेंस इज हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, ऐसा नहीं है. अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में हार्मोनियस है, हैप्पीनेस है, हमको उसको समझना है. तो इसके लिए करंट एजुकेशन सिस्टम जो है, उन्होंने इंटरपर्सनल स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उसको उन्होंने डेवलप किया है. उसके सिलेबस, उनके बुक्स बन रहे हैं और धीरे धीरे ये सभी स्कूल कॉलेज में कंपलसरी होगा. काफी सारी जगह पर इम्प्लीमेंट हो भी गया है. और वैल्यू एजुकेशन बेस्ड स्कूल भी है कुछ जगह पर, और कॉलेज में, स्कूल में इसको एक एक चैप्टर, एक एक कोर्स के रूप में इसको पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं काफी सारी जगह पर. दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहना चाहिए युद्ध स्तर पे वहां पे उन्होंने काम चालू कर दिया है. टीचर ट्रेनिंग चालू कर दिया है उन्होंने, कि ऐसा राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला जो नॉलेज है उसको हैप्पीनेस, उन्होंने किताब का नाम हैप्पीनेस रखा है. हैप्पीनेस के नाम से क्लास 1 to 8 अभी दे रहे हैं. और कहीं पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट बेस्ड एजुकेशन के नाम से भी कुछ बुक्स स्कूल में